اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمیلہ طالب اور آپ سب کو عید کے بعد اس ویڈیو میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں۔ سب سے پہلے بیٹا اہم بات کہ آپ نے عید پر بھی مجھے امید ہے کہ آپ نے پورا خیال رکھا ہوگا، SOPs کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی قربانی میں حصہ لیا ہوگا اور قربانی سر انجام دی ہوگی۔ بیٹا ابھی عید کے بعد بھی لیکن آپ نے بہت زیادہ اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ یہ نہیں ہو جانا، لاپرواہ نہیں ہو جانا ہے اپنی صحت کے لیے کہ آپ نے ہاتھ دھونے چھوڑ دیں، ماسک پہننا چھوڑ دیں۔ نہیں بیٹا، آپ کو اسی طرح اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، بار بار اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے، ماسک پہننا ہے، سماجی فاصلہ بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگرچہ وہ بیماری جو ہے کم ہو گئی ہے، اس کا وہ ریشو کم ہو گیا ہے بیماری کا، لیکن پھر بھی بہرحال بیٹا آپ نے احتیاط ابھی بھی کرنا ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے اور احتیاط ہی واحد علاج ہے۔ ہم آپ کو اسی لیے بار بار آگاہ کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، جو آپ کو گھر میں آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو بتا رہے ہوں گے، آپ کی ٹیچرز بھی آپ کو بتاتی ہیں بیٹا کہ آپ نے احتیاط ضرور کرنا ہے، آپ نے لاپرواہ نہیں ہو جانا ہے، بے فکر نہیں ہو جانا ہے کسی بھی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بار بار اپنے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے، مسلسل اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، 10 سے 20 سیکنڈ تک صفائی کا خیال رکھنا ہے، گندگی پھیلے نہیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اپنے محلے کو صاف رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کو ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا ہے، ماسک پہننا ہے، بلا ضرورت باہر نہیں جانا، اور کچرا جو بھی ہے، گندگی ہے، وہ گھر سے باہر یا گھر میں بالکل نہیں پھیلانا، جس سے جراثیم پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو چھینک آ جائے یا نزلہ ہے یا زکام ہے یا چھینک آ جاتی ہے تو بیٹا اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا ہے، ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا ہے آپ نے، اور استعمال کیا ہوا ٹیشو اپنا ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے، کچرے دان میں ڈالنا ہے۔ اپنا ماسک کا خیال رکھنا ہے، اپنے ماسک کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اگر مفروض ماسک کافی ٹائم ہو گیا کرتے ہوئے تو اس ماسک کو بھی آپ نے ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے اور نیا ماسک استعمال کرنا ہے۔ سماجی فاصلہ اختیار کرنا ہے، گھر میں بھی اور باہر بھی، بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا ہے۔ اگر بہت ضروری ہو جانا اپنے ماں باپ کے ساتھ تو آپ نے باہر جانا ہے، ادروائز آپ نے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ احتیاط کیجیے، احتیاط واحد علاج ہے، اور بیمار ہونے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی احتیاط کر لیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ آپ بیمار ہوں یا آپ کو کسی بھی بیماری کا یا پریشانی کا سامنا ہو۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ بیٹا آج میں آپ کو جو لے کر آئی ہوں، آپ کے جو ہمارا ٹاپک ہے جماعت منجم میں ہم محاورات کو ڈسکس کریں گے، جو ہم نے اپنا نیا سبق پڑھا تھا آپ لوگوں نے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا تھا حضرت خالد بن ولید، اس کا کافی سارا کام تھا جو ہمارا نہیں ہوا تھا، بہت آسان ہے، کوئی اتنا اس میں کام مشکل نہیں ہے۔ سوال جواب ہے، سوال جواب ہم آپ کو کاپی میں کروا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے بہت سے سوال جواب جو مشق کے سوال جواب ہیں وہ ہمارے پیپرز میں نہیں آتے ہیں، سوال جواب بھی ہم کریں گے، لیکن ہم اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے الفاظ کے جملے بنانا آپ خود سے کریں گے، آپ کو ہوم ورک میں جائے گا۔ آپ کو اسم اور فعل کے بارے میں پتہ ہے، جو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں اور تعارف دے دوں کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم کسی بھی نام کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز، شخص، جگہ یا شہر کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ فعل کسی بھی کام کے کرنے کو فعل کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے سوال نمبر 4 میں کیا کرنا ہے، اس سبق میں سے آپ نے اسم اور فعل کو چن کر لکھنا ہے جو اس سبق میں دیے گئے ہیں، اس میں سے وہ لکھنا ہے۔ یہ کام آپ بہت آسان ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی پکچرز میں کھینچ کے آپ کو روانہ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد آپ کو پہلے بھی سمجھا چکے، کسی بھی الفاظ کی الٹ کو یا ضد کو متضاد کہتے ہیں، آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ 3 میں، 4 میں، 2 میں آپ کر چکے ہیں، لیکن آگے بھی اب آیا ہے جس کی متضاد ہے۔ اس کی بھی پکچرز میں نے آپ کو کر کے دی، لیکن آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں بیٹا۔ اب آ جائیے سوال نمبر 6، یہ دیکھیے سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل محاورات کو سمجھتے ہوئے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پیج نمبر 9 پر موجود ہے سوال نمبر 6۔ کیا ہے سوال نمبر 6؟ درج ذیل محاورات کو سمجھتے ہوئے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں محاورہ کیا ہوتا ہے بیٹا۔ محاورے کو میں نے جیسے دیکھیے اس میں محاورے کی تعریف لکھی ہے۔ محاورے کے لغوی معنی بول چال یا بات چیت کے، یعنی محاورہ کیا ہوتا ہے، جو ہم بول چال، جو ہماری بات چیت ہوتی ہے اسی میں سے کچھ الفاظ کو جو لیا جاتا ہے تو وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی میں، غیر حقیقی یا فرضی معنوں میں استعمال کو محاورہ کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی باتیں جو فرض کی گئی
जो हो नहीं हो लेकिन फर्जी तौर पर बयान की जा रही हो, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मसलन 3-5 करना, आग बगोला होना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस तरह की ये चीज़ें क्या हैं, ये मुहावरे हैं जो हमारे आम बोलचाल, जो इसके अल्फाज होते हैं वो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे 3-5 होना, 3-5 गिनती के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका एक ख़ास मकसद है, किस तरह मिलके बनाए गए, इसके क्या मायने हैं। हर मुहावरे के मायने मुख्तलिफ होते हैं और बहुत डीप में जाके उसके मायनों को पता करना होता है। तो मुहावरात की तारीफ ये है, मुहावरे के लुग़वी मायने बोलचाल या बातचीत के हैं, लेकिन इस्तिलाही मायने में गैर हकीकी या फ़र्ज़ी मायनों में इस्तेमाल को मुहावरा कहते हैं। मसलन 3-5 करना, आग बगोला होना वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कुछ मुहावरे थे जो मैंने आपको लिखवाए। अब आपकी बुक में सवाल नंबर 6 में सफ़ा नंबर 9 पे मौजूद है मुहावरे। कुछ हैं जिसमें लिखा हुआ है शर्मिंदा ताबीर होना, आप सब अपनी बुक में देख सकते हैं। धाग बैठना, आसमान से बातें करना, बाग बाग होना, आटे में नमक के बराबर होना। पहले मैंने सोचा था इन मुहावरत के मायने मैं आपको बता दूंगी, जुमले आप खुद बनाएंगे, लेकिन चूंकि ये पहली दफ़ा है कि मुहावरे आप लोग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज आपको मुहावरों के मायने भी बता दिए हैं और जुमले भी बना दिए हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी चैप्टर में, किसी भी सबक में आपका मुहावरे का आ जाता है बेटा, तो फिर वो आप खुद से करने की, खुद से जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम आपको बताते हैं जो आपकी किताब में है। देखें, सवाल नंबर 6 है, दर्जे मुहावरा को समझते हुए अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है शर्मिंदा ताबीर, यानी कि ख्वाब पूरा ना होना या आरजू पूरी ना होना। ठीक है, कोई भी आरजू, ख्वाब, कोई भी बात अपनी पूरी ना होना, उसको कहते हैं शर्मिंदा ताबीर ना होना। शर्मिंदा ताबीर होना, आरजू पूरी ना होना। इसका जुमला बनाया है, मेरा अव्वल आने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका, यानी कि मेरी बशदीद ख्वाहिश थी कि मैं क्लास में अव्वल आऊँ, लेकिन मैं नहीं आ सका, तो इसका मतलब है वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। ठीक है, शर्मिंदा ताबीर होना, आरज़ू पूरी ना होना, मेरा अव्वल आने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। कोई भी ये बच्चा बोल रहा है। धाग बैठना, धाग बैठना मतलब रोब और दबदबा बैठना, रोब और दबदबा होना। ठीक है, तो धाग बैठने का जुमला है, पाकिस्तानी फौज ने भारत फौज के सामने अपनी धाक बिठा दी है। जी हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही हमेशा रखे। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारत फ़ौज के सामने अपनी धाक बिठाई है और अल्लाह ताला इस धाक को ताक़यामत इसी तरह बिठाई रखे। ठीक है, अच्छा नंबर 3 है आसमान से बातें करना, यानी कि बहुत ज़्यादा बुलंद होना, हद से ज़्यादा बुलंद करना या बड़ी बड़ी बातें करना या बहुत ऊंचा होना, उसको कहते हैं आसमान से बातें करना। तो इस हद से ज़्यादा बुलंद होना या बढ़ जाना किसी मामले में उसका है, तो मैंने लिखा आजकल बड़ी बड़ी इमारतें आसमान से बातें कर रही हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। कितनी कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें बनी जा होती हैं, इमारतें बनी हुई होती हैं। 50 मंजिला इमारत होती है, कोई उससे 60 मंजिला इमारत होती है, कोई 400, कोई 100 मंजिला, इस तरह सुनते रहते हैं हम, पूरी दुनिया में होता है। तो इसीलिए उससे मिलता जुलता हमने जुमला बनाया है कि आजकल बड़ी बड़ी इमारतें आसमान से बातें कर रही हैं। या हम इस तरह का भी जुमला बना सकते हैं कि आजकल पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा हो जाता है या चीनी की कीमत में या आटे की कीमत में, तो हम कोई भी इस तरह का इस्तेमाल करते हुए इस तरह का भी जुमला बना सकते हैं। अच्छा नंबर 4 है बाग बाग होना, यानी कि दिल खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। तो उसका जुमला बना अली का अच्छा नतीजा देखकर अम्मा का दिल बाग बाग हो गया। जी हाँ, बेटा है अली, अगर वो खुश अच्छा नतीजा लेकर आया तो अम्मा का दिल उसको देख के बहुत खुश हुआ, यानी कि दिल बाग बाग हो गया। आटे में नमक के बराबर, इसका मतलब होता है बहुत कम तादाद में, बहुत थोड़ी तादाद में। ठीक है, तो उसमें लिखा जुमला बनाया हमने जंगे मौता में मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी, यानी कि इंतहाई कम थी, लेकिन फिर भी वो जंग जीत गए थे। तो ये बताया गया कि जंगे मौता में मुसलमानों की तादाद किस तरह थी, उसकी मिसाल आटे में नमक के बराबर में थी, यानी कि बहुत कम तादाद। यानी कि जब आटा गूंथते हैं, आपको पता है फिर नमक बहुत कम मिकदार में आटा तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन नमक बहुत कम डाला जाता है, तो आटे में नमक के बराबर यानी कि बहुत कम मिकदार में होना। ठीक है, ये जुमले आपके 5 वो थी मुहावरे थे जिनको हमने मायने लिख के इसको जुमलों में इस्तेमाल किया है। उम्मीद करती हूँ ये आप समझ गए होंगे, इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में ये काम करेंगे। लेकिन ये काम कॉपी में करने से पहले आपने जो बुक में मौजूद काम है वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा, वो काम आप अपने बुक में ही करेंगे। ये आपका काम कॉपी में करने का है, तो ये आप काम
कॉपी में करेंगे, लेकिन किस तरह, पहले टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद टाइटल पेज बनाएंगे पहले खालिद बिन वलीद का, उसके बाद आपका ये काम होगा। और आपके जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं या जो दूसरा काम है वो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, आगे पीछे काम हो सकते हैं। जुमले बनाने का काम भी आप बाद में कर सकते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज भी आप लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए एक पेज छोड़ दीजिएगा टाइटल पेज के बाद और फिर ये काम कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था बेटा, क्योंकि जुमले बनाना या ज़ख़ीरा अल्फाज उसमें आपको कोई समझाने का काम नहीं होता है, वो आपको मैं सिर्फ लिख कर भेज देती हूँ तो वो आप कर लेते हैं, तो उसकी पिक्चर खींच के मैं लिख के भेज दूँगी आपको तो वो आप कर लेंगे। लेकिन मुहावरे आपको समझाना बहुत ज़रूरी था कि इसके क्या मतलब होते हैं, क्या मायने होते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए मुहावरे का। जैसे मैंने आपको बताया कि मुहावरत की तारीफ़ क्या होती है, मुहावरे के लुग़वी मायने बोलचाल या बातचीत के हैं, लेकिन इस्तिलाही मायने में गैर हकीकी या फ़र्ज़ी मायने में इस्तेमाल को मुहावरा कहते हैं। मसलन 3-5 करना, आग बगोला होना, ये मुहावरे की तारीफ़ थी जो आपको समझाया गया कि मुहावरे को किस तरह इस्तेमाल किया जाते हैं। ये चंद मुहावरे आपकी किताब में दर्ज थे जिसके मायने भी हमने लिखे और उसके जुमले बनाए। शर्मिंदा ताबीर होना, भाग बैठना, आसमान से बातें करना, बाग बाग होना, आटे में नमक के बराबर, इन तमाम मुहावरों के ये मायने हैं और उसके बाद ये इसके जुमले हैं। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में साफ सुथरे उतारिएगा और छोटा लिखिएगा ताकि एक पेज पर आ जाए, आपको वो ना हो कि बहुत लंबा जाएगा जुमला, तो आप बेटा 2 लाइनों में कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एक लाइन पे ये लिखें फिर उसके आगे 2 लाइनों में अगर मायने आ रहे हैं तो आप 2 लाइनों में कर लीजिएगा। जुमले भी आपके 2 लाइनों में आएगा, ज़ाहिर सी बात है 1 लाइनों में नहीं आएगा, तो आप 2 लाइनों में कर लीजिएगा। उसके बाद आप दूसरा मुहावरा उतारिएगा। बिल्कुल तमीज़ से साफ़ सुथरा काम कीजिएगा और कोशिश कीजिए बेटा तमाम बच्चे 5 क्लास के पेंसिल से काम कीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों का काम जो मेरे पास चेक होने के लिए आया है उन लोगों ने पेन से काम किया हुआ था, तो बेटा प्लीज़ जो आगे काम आप स्टार्ट करें तो वो पेंसिल से करें और ब्लू पेंसिल इस्तेमाल करें, पेन यूज़ नहीं करें आप लोग। ठीक है, मैंने आपको वैसे भी बता दिया, लेकिन मैं फिर आपको बता रही हूँ कि तमाम बच्चे 5 क्लास के पेंसिल इस्तेमाल करें उर्दू और इस्लामियात दोनों के काम में। ठीक है बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने मिस को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। मुहावरात कोई इतने मुश्किल नहीं होते, मुहावरात बहुत सारे मुहावरात की बुक्स भी मिलती हैं, आप लोग किताबें ख़रीदें मुहावरात की और उसमें देखिए कौन कौन से नए मुहावरात हैं जो आप पढ़ें, उसको जानें, उसको समझें, उसके मायने भी उसमें दर्ज होते हैं, उसमें जुमले भी बनाए जाते हैं और कुछ कहानी बता दी जाती है कि इस मुहावरे से मुताल्लिक़ क्या कहानी है। ठीक है, तो ये आप अगर कोई बहुत सारी बुक्स आती हैं मुहावरे की जो आप लेकर पढ़ सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मुहावरात को। ठीक है, आपके आगे पेपर्स में भी ऐसा हो सकता है कि मुहावरात आ जाए, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना आ जाए, या कुछ मुहावरात दे दिए जाएँ कि इसके मायने लिखिए फिर इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो मुहावरत की पहचान, उनके जुमलों की उनके मायने की पहचान और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी शुरुआत है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझिए, हो सकता है आपके पेपरों में ये आपको आए तो आप इसको करेंगे। बेटा तफ़हीम का मैंने बार बार बताया, सबको तफ़हीम करनी आनी चाहिए। तफ़हीम इसी तरह होती है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, आप उसे पढ़ेंगे, उसके मुताबिक जो भी सवाल जवाब नीचे दिए गए होते हैं उसके आपने जवाब देना होता है। कुछ बार दफ़ा आपको तफ़हीम में बोल दिया जाता है कि इनमें से इसम अलग कीजिए, इनमें इस तफ़हीम में, इस इबारत में से फ़ेल जो काम हो रहे हैं फ़ेल के वो अलग करके लिखिए। कुछ बता दिया जाता है कि इसमें नकरा, इसमें कौन कौन से उनको आप अलग कीजिए, इसमें नकरा, इसमें मारफा ख़ास काम नाम को कहते हैं और इसमें नकरा आम नाम को कहा जाता है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बेटा आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें कि तफ़हीम में अगर कोई चीज़ ऐसी आ जाए तो आप बहुत अच्छे से कर सकें। या इस तरह भी आ सकता है कि भाई दी गई जो इबारत है, तफ़हीम की जो इबारत है, इसमें कुछ मुहावरे छुपे हुए वो आप ढूंढ कर लिखिए, ये भी आ सकता है। तो इस तरह आपको करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए कि आखिर कौन सा जुमला है जो मुहावरतन बोला जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अपनी इसको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।